بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی یہ سارے پروسیس ہم ڈیٹیکشن کے پڑھ رہے ہیں، تو کل والے ٹاپک میں ہم نے ڈیٹیکشن آف ہیلوجن اور ڈیٹیکشن آف نائٹروجن کمپلیٹ کر لی۔ اس سے پہلے ڈیٹیکشن آف کاربن تھی تو وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ تو ابھی تقریباً ڈیٹیکشن کے آخری جو ٹاپک ہے وہ تقریباً آخری، بس یہ ختم ہو جائے گا ڈیٹیکشن، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی اینڈ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹاپک ہے ڈیٹیکشن آف آکسیجن ان آرگینک کمپاؤنڈ، ڈیٹیکشن آف فاسفورس ان آرگینک کمپاؤنڈ، اور اسی طرح ڈیٹیکشن آف میٹل ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ یعنی آرگینک کمپاؤنڈ میں ہم پہلے آکسیجن کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کیسے فائنڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فاسفورس کی ڈیٹیکشن کیسے ہوتی ہے آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر، اور اسی طرح پھر میٹل کی ڈیٹیکشن کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ آخری ٹاپک میں تقریباً ان 3 ایلیمنٹ کی ڈیٹیکشن شامل ہے۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے سب کی ڈیٹیکشن پڑھیں گے۔ اس میں تھوڑی سی آسانی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہے کہ اس سے پچھلے جتنے ڈیٹیکشن تھے تو ان تمام ڈیٹیکشن کے اندر آلموسٹ ریئیکشن جو تھے وہ انوالوڈ تھے، اس میں ریئیکشن کی بھی ضرورت تھی، تھیوری کی بھی ضرورت تھی، لیکن ابھی جو یہ ڈیٹیکشن کے میتھڈ ہے نا، اس میں تقریباً وہ سب آپ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ریئیکشن نہیں ہے، صرف آپ کو جو پروسیجر ہے وہ آنا چاہیے۔ تو ڈیٹیکشن آف آکسیجن، آکسیجن کا یہ کہ آکسیجن کو ڈیٹیکٹ کرنے کا یا آکسیجن کو فائنڈ کرنے کا کوئی الگ ٹیسٹ نہیں ہے، جیسے وہ نائٹروجن کے لیے الگ ٹیسٹ تھا، ہیلوجن کے لیے الگ ٹیسٹ تھا۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو آکسیجن کی ڈیٹیکشن کے لیے کوئی سپریٹ یا کوئی الگ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ منشن بھی کیا ہوا ہے کہ دیر از نو کنکلوسیو ٹیسٹ فار آکسیجن پریزنٹ ان آرگینک کمپاؤنڈ، یعنی آپ کوئی الگ ایک انڈیویجول ٹیسٹ کر کے نا آکسیجن کی ڈیٹیکشن نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پھر آپ یہ کہ ہمارے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سبسٹنس از ہیٹڈ ان ڈرائی ٹیسٹ ٹیوب، فارمیشن آف ڈراپلیٹ شو دا پریزنس آف آکسیجن۔ آپ ٹیسٹ ٹیوب لے کر، یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں آپ آرگینک کمپاؤنڈ ڈالیں گے، آرگینک کمپاؤنڈ ڈالنے کے بعد جیسے یہ آپ دیکھیں میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں، ٹیسٹ ٹیوب آپ لے کر اس میں سے آپ یہاں پہ آرگینک کمپاؤنڈ ڈال دیں یہاں پہ، اور ڈرائی فارم میں ڈالیں گے۔ آرگینک کمپاؤنڈ ڈال کر اس کو پھر آپ ہیٹ کر لیں۔ اگر ہیٹ کرنے سے یہاں پہ آپ کو ڈراپلیٹس نظر آ جاتے ہیں، یہاں ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں، تو ڈراپلیٹس بننے کا مطلب کیا ہوگا کہ آکسیجن از پریزنٹ۔ لیکن اس ٹیسٹ کا تھوڑا سا یہ کہ اگر ڈراپلیٹ نہیں بھی بنتے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں آکسیجن نہیں ہے، پھر بھی اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ہمارے پاس کوئی اتنا اتھینٹک ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ آکسیجن آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا میتھڈ ہمارے پاس ہے ڈیٹیکشن آف فنکشنل گروپ۔ یہ اچھا میتھڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے پریکٹیکل بھی ہے، اور آپ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جب پریکٹیکل کریں گے پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر جیسے آپ لوگوں نے پریویس ٹاپک میں پڑھا ہے کہ فنکشنل گروپ ہوتے ہیں، جیسے الکوہل کا فنکشنل گروپ ہوتا ہے OH، الڈیہائڈ کا فنکشنل گروپ ہوتا ہے CHO، کاربوکسیلک کا فنکشنل گروپ ہوتا ہے COOH، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈ کے فنکشنل گروپ میں آکسیجن کے ایٹم ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پھر ہم انڈیویجول ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے الکوہل کے فنکشنل گروپ کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، الڈیہائڈ کے فنکشنل گروپ کا جو ہے یہ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، کاربوکسیلک کے فنکشنل گروپ کا جو ہے یہ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ پوری ایک اسکیم ہوتی ہے، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم فنکشنل گروپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس الکوہل کا فنکشنل گروپ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، یا الڈیہائڈ کا، کاربوکسیلک ایسڈ کا، یا نائٹرو گروپ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، یا کیٹون کا گروپ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، تو چونکہ ان گروپس فنکشنل گروپس کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں آکسیجن کے ایٹم ہوتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی فنکشنل گروپ ہمارے پاس ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس ڈیٹیکٹ ہونے کا مطلب یہ کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر آکسیجن موجود ہے۔ لیکن یہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کر لیا ہے کہ یہ جب آپ مطلب پریکٹیکل شروع کر لیں گے انشاءاللہ، تو پریکٹیکل کے دوران فنکشنل گروپ کے ٹیسٹ ہے اور وہ پورا پروسیجر جو ہے وہ اسی وقت میں آپ کو کرا دوں گا۔ تو فنکشنل گروپ کے ڈیٹیکشن سے بھی ہم آکسیجن فائنڈ کر سکتے ہیں۔
इसमें एक और मेथड है, तीसरा मेथड है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप आखिरी चैप्टर में पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं और फिर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम 100 से माइनस करके उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। तो वो जो परसेंटेज कंपोजिशन का मेथड है उससे भी आप मतलब ऑक्सीजन की डिटेक्शन कर सकते हैं या इवन इसकी परसेंटेज जो है वो आप लोग फाइंड कर सकेंगे। लेकिन वो मेथड फिर आखिरी चैप्टर में है, तो आखिरी चैप्टर जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको कार्बन कंबस्शन एनालिसिस का पूरा प्रोसीजर, उसकी पूरी कैलकुलेशन शामिल होती है। उसमें फिर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। इन्हें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस मौजूद है तो वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं या फास्फोरस की डिटेक्शन हम कैसे करेंगे। शर्त इन तमाम चीज़ों में ये है कि मतलब ये चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हों, तब इनकी डिटेक्शन भी होती है और इसी तरह इनकी डिटेक्शन करके हम इन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर आप प्रोसीजर देखें तो हीट द सॉलिड कंपाउंड विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ sodium carbonate and potassium nitrate, then added mixture of sodium carbonate and potassium nitrate। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं दोबारा रिपीट कर लूँ कि आप सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, सोल्यूशन की बजाय जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे और सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर इसके अंदर, जैसे ये आपको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बाद मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट डाल देंगे और इसके बाद अगले स्टेप में, ये मैंने सारे स्टेप वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगले स्टेप में फिर आप क्या करेंगे, द रेजिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड एंड देन हॉट सॉलिड अमोनियम मोलिडिबेट। ये एक कंपाउंड है, यानी ये सब कुछ फिर आप नाइट्रिक एसिड डालकर वाटर के साथ इसकी एक्सट्रैक्शन करें और फिर आखिर में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, यानी नाइट्रिक एसिड आपने डाल दिया, वाटर के साथ आपने एक्सट्रैक्शन इसकी कर ली, जो रेजिड्यू यहाँ से आ जाए, क्योंकि ऊपर आप देखें ना, जब ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड आप डाल देंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फास्फोरस है वो चेंज हो जाएगा फॉस्फेट में, इसमें फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फेट का जो रेजिड्यू है वो आप वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट कर लें, उसमें नाइट्रिक एसिड भी आप डाल दें और नाइट्रिक एसिड के डालने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमोनियम मोलिडिबेट भी डाल दें। अगर ये सब कुछ आपने डाल दिया तो इसके बाद येलो प्रिसिपिटेट बन जाएगा और येलो प्रिसिपिटेट बनने का मतलब ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस मौजूद है। लेकिन अगर इन केस ये पूरा प्रोसेस आपने कर लिया, ये सब कुछ आपने डाल दिया, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मतलब कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ या यूँ समझ ले कि आपके पास बाकी फॉस्फेट और येलो रेजिड्यू नहीं बना, आपने ये सारा कुछ कर लिया लेकिन इसमें आपके पास वो येलो रेजिड्यू नहीं बना, तो इसका मतलब ये है कि फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि उनमें फास्फोरस नहीं भी होता। तो इसी तरह अगर फास्फोरस मौजूद हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसकी डिटेक्शन फिर आप इस प्रोसीजर से करेंगे, जो कि मैंने पूरी डिटेल इसकी आपको बता दी। आखिरी जो डिटेक्शन है वो आखिरी डिटेक्शन किस चीज़ की है, डिटेक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल की डिटेक्शन। ये याद रखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें मेटल के आयंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, तो मैग्नीशियम क्या है, वो मेटल है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो इसमें आयरन के आयंस होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि उनमें मेटल के आयन मौजूद है। बल्कि मैं ये आपको और भी क्लियर करके बता दूं कि पूरा एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर।
तो जितने हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं उन तमाम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर जो है वो मेटल के आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे मैंने आपको क्लोरोफिल की एग्जांपल दे दी, इसके अलावा देखा जाए तो मैंने आपको एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन की दे दी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि उनमें मेटल के आयन जो है वो मौजूद होते हैं। तो मेटल की आयन की डिटेक्शन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे करते हैं या किस तरीके से करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो आपकी बुक में भी शामिल है जिसको ग्रेगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, और उसका फार्मूला जो होता है ना वो यूँ होता है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का आर, ये आप पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन आप पढ़ेंगे Mg तो 7X। R अल्काइल ग्रुप है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, X जो है वो हैलोजन है, और इसमें अगर आप देखें तो मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल के आयंस होते हैं। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट, जिसकी डिटेल आगे आएगी और आप इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे, आप इसके पूरी रिएक्शन जो है वो भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उन तमाम कंपाउंड्स के अंदर मेटल के जो आयंस होते हैं या मेटल के जो एटम हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम मेटल के आयन की डिटेक्शन कैसे करते हैं या उसका प्रोसीजर क्या है। मैंने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स में करा दूँ, क्योंकि प्रोसीजर जब आप पॉइंट में लिखेंगे एक तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, दूसरी बात यह है कि आपको लिखने में भी आसानी होगी, दूसरा बंदा जब पढ़ेगा वो भी इजीली इसको समझ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस। इन ए सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर वो मेटल के आयन मौजूद हैं, इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ क्रूसिबल टिल द रिएक्शन सीज। क्रूसिबल एक मेटालिक कंटेनर होता है, मतलब उस मेटालिक कंटेनर में, क्रूसिबल में आप सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड डालकर इसको आप हीट कर लें। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हीटिंग से, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, एयर भी होती है, तो जैसे आप लोग पहले से जानते हैं कि हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन हो जाएगी, लेकिन जो मेटल है, मेटल की कंबशन नहीं होती, तो मेटल रह जाएगी और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंबशन के नतीजे में जैसे हम कहते हैं उड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंबशन जब हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी और बाकी जो मेटालिक सब्सटेंस है वो रेजिड्यू जो है वो यहाँ पे रह जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू। और इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू की मीनिंग क्या है, जो मेटल के आयंस है या मेटल के कंपाउंड्स हैं या मेटल है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेटल। अगर यहाँ पे मतलब कोई भी रेजिड्यू आपके पास रह जाए, कोई चीज़ आपके पास रह जाए, क्योंकि कंबशन के बाद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कोई चीज़ बच जाती है, रेजिड्यू आपके पास बच जाए, तो रेजिड्यू बचने का मतलब है कि ये मेटल ही है। समझ आ गई चीज़ की। अब नेक्स्ट स्टेप को आप देखें, द रेजिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड। इसमें आप डाइल्यूट एसिड डालें, जो मेटल है या मेटल का रेजिड्यू है वो एसिड के साथ मिल जाएगा। और इसी तरह आमतौर पर हम एसिड कौन सा डालते हैं, HCl डालते हैं। तो जो मेटल है आमतौर पर उसके क्लोराइड्स जो है वो बन जाते हैं, या इसी तरीके से मेटल के नाइट्रेट भी बन सकते हैं अगर आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे, लेकिन आमतौर पर हम HCl इसलिए डालते हैं कि मेटल के क्लोराइड जो है वो फिर बाद में सॉल्युबल भी होते हैं और इजीली जो है वो इवापोरेट भी हो सकते हैं, या मतलब जो क्लोराइड है वो हमारे पास नाइट्रेट की निस्बत या कार्बोनेट की निस्बत ज़्यादा इजीली टेस्ट के लिए सूटेबल होते हैं। एंड टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक रेडिकल बाय द स्कीम फॉर इनऑर्गेनिक साल्ट। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, ये आखिरी पॉइंट जो है ना ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। समझने वाला इसलिए है कि जब आपके पास मेटल के क्लोराइड बन जाएंगे या मेटल के जो आयंस है वो क्लोराइड बना लेंगे, तो वो क्लोराइड पर आप इनऑर्गेनिक जैसे इस के पूरी स्कीम होती है। और स्कीम का मतलब ये कि आप लोगों के जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल है तो मोस्टली वो साल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल हैं। तो साल्ट एनालिसिस जो है उसकी मदद से फिर हम मेटल के मुख्तलिफ ग्रुप्स या मेटल के मुख्तलिफ आयन जो होते हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं।
और ये बहुत सारे प्रैक्टिकल है, ये कोई एक सिंगल प्रैक्टिकल नहीं है। मुख्तलिफ आइंस के लिए, मेटल के आयन के लिए जो है ना, वो मुख्तलिफ डिटेक्शन के रिएक्शन किए जाते हैं। पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक स्कीम होता है। तो ये आप इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर ये सारी चीज़ें उस वक़्त आपको और मज़ीद जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हम कैल्शियम के आयंस के लिए टेस्ट करते हैं, एल्यूमिनियम के आयंस के लिए करते हैं, लेड के आयंस के लिए करते हैं, आयरन के आयंस के लिए करते हैं, तो वो पूरी स्कीम जो है ना वो आपको दी जाएगी। आपके प्रैक्टिकल के कापी में भी वो स्कीम होती है और उसी स्कीम को आप देखकर, उसको पढ़कर आप मेटल के आयन की डिटेक्शन करेंगे। तो बहरहाल ये ऊपर जो 2 पॉइंट हैं, इसी तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि और क्रूसिबल लेकर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, जैसे मैंने ये डायग्राम में शो किया हुआ है। ये क्रूसिबल है, इसमें आप सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको आप हीट कर लें। अब हीट करने से क्या हो जाएगा, इसमें जो बाकी एलिमेंट है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है या बाकी एलिमेंट है, तो कंबस्शन हो जाएगी। कंबस्शन तो आप जानते हैं कि कंबस्शन के नतीजे में जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों निकल जाएंगे। दोनों निकल कर बाकी अगर मेटल के कुछ सब्सटेंसेस से मेटल है आपके पास, तो वो मेटल यहाँ पे रह जाएगी। तो मेटल के रहने के बाद या मेटालिक रेजिड्यू रहने के बाद मेटल रह जाएगी और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सारा एयर में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के वेपर एयर में चले जाएंगे। अब वो जो मेटल है उसके साथ या मेटल रेजिड्यू है, तो उसके साथ क्या होगा कि आप फिर थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट HCl डाल दें, बल्कि कॉन्सनट्रेटेड भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है लेकिन ये आप कॉन्सनट्रेटेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब वो एसिड आप डाल देंगे, HCl आप डाल देंगे, तो वो मेटल के क्या क्लोराइड्स बन जाएंगे। अब क्लोराइड बनने के बाद आप मज़ीद क्या करेंगे कि जब भी आपके पास उस मेटल के क्लोराइड बन जाएंगे, तो क्लोराइड के लिए फिर आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक की हमारे पास स्कीम होती है साल्ट एनालिसिस की, उस स्कीम को लेकर उसी को फॉलो करके आप मेटल के आयन की डिटेक्शन कर लेंगे। और वो पूरा एक प्रोसीजर है जो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के दौरान आप सारा सीखेंगे, या सारा आपको खुद भी प्रैक्टिकली वो सारे मेटालिक आयन मालूम करेंगे। लेकिन वो हम करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, यानी इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स होते हैं, तो साल्ट के अंदर जो भी मेटल के आयंस होते हैं वो हम इसी तरीके से डिटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वही प्रोसीजर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मेटल के आयंस है उनके लिए आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे। तो ये तकरीबन इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने थोड़ा सा एक और काम करना है, वो ये कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज अगर आप देखें तो एक्सरसाइज इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। एक्सरसाइज के समझने में या एक्सरसाइज में कोई अनसीन क्वेश्चन नहीं है, कोई इस तरह रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आप बुक में अगर थोड़ा सा भी आप देखें तो बुक से वो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर ले, वो क्वेश्चन आप मुझे भेज दे, मैं पूरी डिटेल से उसकी वीडियो बना के उसका आंसर बना के आपको वो भेज दूँगा। आप कोशिश कर लें, क्योंकि इन सारी चीज़ों की दोबारा रिपीटिशन नहीं होगी। ये आप लोगों का जो सेकंड ईयर का कोर्स है ये बहुत लेंथी है, तो क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी फिर टाइम भी बहुत शॉर्ट होगा, तो आप कोशिश कर लें कि इन सारी वीडियो को बजाय इसके कि आप जितना आपने वैसे भी टाइम ज़ाया किया हुआ है, अभी मज़ीद टाइम आप ज़ाया ना करें, और जो भी आपको वीडियो मिलती है या वीडियो के अंदर चीज़ें मिलती हैं उसको बार बार देख लिया करें। और जहाँ भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप मुझसे या कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैसेज भी आप भेज सकते हैं, फ़ोन पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले चैप्टर जो है वो हाइड्रोकार्बन का है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जैसे वो आप यूँ समझ लें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस जो है वो इन हाइड्रोकार्बन के चैप्टर पे है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो बार बार पेपर में मतलब पूरी बुक के अंदर रिपीट होती हैं। बेसिक रिएक्शन इसके अंदर है, बड़ा चैप्टर है, यूँ समझ लें कि वो एक चैप्टर जो है वो तकरीबन 2 चैप्टरों के बराबर है।
تو میں کوشش کر لوں گا کہ اس کی جو بیسک ہے، جیسے الکین کی بیسک ہے یا باقی چیزوں کی جو بیسک ہے، وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ پڑھا دوں تاکہ آپ لوگوں کی آرگینک کی بیس یہاں سے بن جائے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کی بیس یہاں سے بن جاتی ہے تو پھر آگے آپ کو آرگینک میں اتنی زیادہ پرابلم جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو اسی وجہ سے آپ نے ایبسنٹ نہیں ہونا ہے. اور کل کے یا کل کے بعد جتنے لیکچر ہیں نا، کیونکہ ہائیڈرو کاربن جو ہے دیٹ از بیسک چیپٹر، اس کے اندر جتنی چیزیں آپ پڑھیں گے وہاں سے آپ کی بیس بنے گی، اور بیس بن کر پھر آپ کے لیے آرگینک آسان ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ ہائیڈرو کاربن کا چیپٹر نہیں سمجھا یا اس کے سمجھنے کی آپ نے کوشش نہیں کی تو پھر آگے آرگینک سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو کوشش کر لیں کہ اس میں سارے پریزنٹ ہوں اور کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے فرسٹ ایئر کے مارکس کا ڈیپینڈ جو ہے وہ بھی سیکنڈ ایئر پہ ہے. پھر سیکنڈ ایئر کے بعد آپ اینٹی ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہوں گے، ایون سیکنڈ ایئر کے امتحان سے بھی کچھ آپ کے اینٹی ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے کوشش کر لیں کہ آپ کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.